صلی علی رسولہ الکریم اما بعد پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں اس کا نزول ہوا، بلکہ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سورۃ المائدہ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے۔ اس میں جو احکام حلال کے ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال، جو حرام کے ہیں وہ قیامت تک کے لیے حرام۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المائدہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر 15ویں رکوع میں ایک تذکرہ آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ عربی میں اگر دسترخوان بچھا ہوا اور اس کے اوپر کھانا بھی لگا ہوا تو کھانے سمیت اس کا نام ہوگا دسترخوان، اور اگر کھانا نہ لگا ہو، صرف ہم نے وہ کپڑا یا کوئی بھی جو شیٹ ہے وہ بچھائی ہو کھانا رکھنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں خوان۔ اس کا نام دسترخوان نہیں ہوتا۔ دسترخوان اس وقت ہوتا ہے جب وہ کھانا بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے، یعنی چنا چنایا اور دسترخوان خوب، اس میں کھانے بھی ہوں، سب کچھ ہوں، وہ ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ دوسرا نام اس سورہ مبارکہ کا سورۃ العقود بھی ہے، سورہ عقود۔ عقود اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عقد کہتے ہیں معاہدے کو، اللہ تعالیٰ نے معاہدے کا ذکر فرمایا کہ معاہدے پورے کیا کرو، اس کا پورا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ بھی ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ عقود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہدوں کو، عہد، معاہدے، ان کو پورا کرو جو تم نے
आपस के अंदर माहदे किए हों उनको भी पूरा करो, और जो आपस के अंदर नहीं किए बल्कि दूसरे लोगों के मामलात के साथ अपनी जान और अपने नफ्स के मामलात हैं उनको भी पूरा करो। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, मुआहदों को पूरा करो। तो मुआहदों को पूरा करने में ये बात याद रखें, एक मुआहदा वो होता है जो इंसान का अल्लाह की ज़ात के साथ है, जैसे ईमान है, इताअत है, या हलाल और हराम का मुआहदा है। इन सब चीज़ों की पाबंदी करना ये इंसान के ज़िम्मे लाजिम है। तो ये मुआहदा वो है जो इंसान और अल्लाह की ज़ात के दरमियान। दूसरा एक मुआहदा वो होता है जो एक इंसान का ख़ुद अपने नफ्स के साथ होता है। जैसे किसी ने मन्नत मान ली कि अगर मेरा ये फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूँगी, इतना सदका खैरात करूँगी, या इसी तरह कसम उठाई और कसम उठाकर कोई चीज़ अपने ज़िम्मे में ले ली। तो ये वो मुआहदा है जो इंसान का अपने नफ्स के साथ है। और तीसरे नंबर पर वो मुआहदा होता है जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है, और इस मुआहदे के अंदर इंसान का आपस में कोई भी मुआहदा तय कर लेना, चाहे वो जायदाद के हवाले से हो, चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो मेहनत और मज़दूरी के हवाले से हो, कोई भी मुआहदा जो तय हो जाए, मज़दूर की तरफ से तय हो गया कि मैंने ये काम करना है, मालिक की तरफ से ये तय हुआ कि मैंने इतनी मज़दूरी देनी है, तो ये मुआहदा भी पूरा करना लाजिम है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में ये बात इरशाद फरमा दी कि औफू बिल उक़ूद, मुआहदों को पूरा करो। दूसरी बात, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, हलाल किए गए तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम। बहीमा कहते हैं चरने वाले जानवर, घास वगैरह खाने वाले जानवर। अल अनआम, अनआम कहते हैं मवेशी को, वो जानवर जो कि पालतू होते हैं, यानी चरने वाले तो और भी बहुत से जानवर। तो बहीमा का लफ्ज़ था आम, फिर अनआम का, अनआम को उसकी सिफत बनाकर इसको ज़िक्र किया गया कि अब उसके अंदर तखसीस पैदा कर दी गई कि हर चरने वाले जानवर नहीं, बल्कि जो ऐसे जानवर जो कि पालतू होते हैं, जिनका ज़िक्र सूरतुल अनआम में आगे चलकर आएगा। वहाँ पर अल्लाह ताला 4 जानवरों का ख़ास तौर पे ज़िक्र फरमाते हैं। जब वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों जमा होते हैं तो 8 जानवर बन जाते हैं। उसमें ऊँट, गाय, बकरी और भेड़। तो ये 4 मुज़क्कर 4 मुअन्नस, ये 8 जानवर हो गए। और भैंस को भी क़यास कर लिया जाता है गाय पर। तो ये जानवर हैं जिनको यहाँ पर बहीमतुल अनआम के लफ्ज़ से ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया उहिल्लत लकुम, हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम, चरने वाले मवेशी, चरने वाले जानवर तुम्हारे लिए हलाल हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर वो जो बयान किए गए अलैकुम तुम्हारे ऊपर, यानी आगे अल्लाह ताला एक फ़हरिस्त दे रहे हैं कि जो जानवर मुतलकन तो हलाल थे, लेकिन इनके अंदर ये वाला मसला आ जाने की वजह से, ये प्रॉब्लम आने की वजह से ये जानवर अब हलाल नहीं रहे, ये हराम हो गए। इसका कल के सबक में एक पूरी लिस्ट अल्लाह ताला बनाकर हमें देंगे और उसका तज़किरा कल के सबक में आने वाला है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया जानवर तो हलाल हैं, बहीमतुल अनआम, चरने वाले जानवर हलाल, इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर वो जो तिलावत कर दिए गए, बयान कर दिए गए तुम्हें। एक मसला मुकम्मल हो गया। गैर मुहिल्लिस सैदी, गैर मुहिल्लिस सैदी का मतलब है कि गैरा नहीं है, मुहिल्ली हलाल, सईद कहते हैं शिकार को, शिकार करना हलाल नहीं है।
किस सूरत में? व अंतुम हुरुमुन, जब तुम हालत एहराम में हो। हालत एहराम में शिकार करने की इजाज़त नहीं है। ये सूरह मुबारका, ये वाली आयात मुबारका उस मौके पर नाजिल हुई जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए हज्जतुल वदा के सफ़र पर आप मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा की तरफ जा रहे थे, हालत एहराम में थे। अल्लाह ताला ने उस मौके पर यह आयत मुबारका नाज़िल फरमाई और ऐलान फरमा दिया कि हलाल हैं जानवर, लेकिन वो हलाल नहीं जिनकी आगे की लिस्ट आ रही, और कुछ ये गैर मुहिल्ल सईद के हालत एहराम में शिकार करने की इजाज़त नहीं है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला फ़ैसला करता है, हुक्म देता है, मा युरीदु, जो वो चाहता है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो हुक्म देता है, और अल्लाह ताला के हर हुक्म के अंदर भलाइयाँ शामिल होती हैं, वो इंसान को समझ आए या ना आए। इसके बाद अगली आयत मुबारका, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वल शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद। इस आयत मुबारका का शान नज़ूल, एक वाक़या तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए थे, तो सन 6 हिजरी का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन साथ हैं और हम सब उम्रा अदा कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब सहाबा इकराम के सामने बयान किया, तो नबी का ख्वाब तो वही होता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को 6 साल हो गए थे, बैतुल्लाह का इश्क और मोहब्बत के अंदर वो तड़प रहे थे। तो जैसे ही सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बेताब हो गए, हुजूर तैयारी कीजिए, फिर तो चलते हैं, जाकर उम्रा अदा करते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे, तवाफ़ करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयार हो गए। ये सन 6 हिजरी में मक्का मुकरमा से कुछ फासले पर, कुछ पहले हुदैबिया का मकाम है, वहाँ पर पड़ाव किया। तो मुशरिकीन मक्का ने वहाँ पर पैगाम भेज दिया कि हम आपको इस साल उम्रा अदा नहीं करने देंगे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन इस मौके पर हालत एहराम में थे और कुर्बानी का जानवर भी साथ लेकर जा रहे थे, और सिर्फ उम्रा अदा करने का इरादा था, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी अब अगले साल आएंगे और आकर आप उम्रा अदा करेंगे, इस साल हम आपको उम्रा अदा नहीं करने देंगे, मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं होने देंगे। बहुत सख्त शराइत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने इन शर्तों को तस्लीम किया और वापस आ गए। सन 7 हिजरी को अगले साल ज़ीक़ाद के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने सफ़र किया, और ये जो उम्रा इन्होंने एहराम खोल दिया था, ये उम्रा इनके ऊपर वाजिब था, इसकी क़ज़ा करने के लिए सहाबा इकराम का लश्कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मक्का मुकरमा पहुँचा और इन्होंने जाकर उम्रा अदा किया। लेकिन ये जो उन्होंने रोक दिया था, उस रोकने की बिना पर सहाबा इकराम के दिलों में मुशरिकीन मक्का की नफ़रत, बुग़्ज़ तो पहले था, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये इन्होंने ज़्यादती की है, इनकी जुर्रत क्या है कि अल्लाह के घर से हमें रोक रहे हैं। एक वाक़या तो ये पेश आया। दूसरा वाक़या ये पेश आया कि मुशरिकीन मक्का में एक आदमी था जिसका नाम था हतीम बिन हिंद। ये अपना माल तिजारत लेकर मदीना तैयबा आया और यहाँ आकर इसने अपना सामान फ़रोख्त किया। फ़रोख्त करके अब बाकी जो सामान यहाँ से लेना था वो ले ला के मदीना तैयबा के बाहर निकला और वहाँ जाकर अपने काफ़िले को वहाँ छोड़ा, और ख़ुद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया। आकर यहाँ पे इसने मुनाफिकाना तौर पर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के सामने अपने इस्लाम लाने का इरादा ज़ाहिर कर दिया।
دل سے کافر تھا اور زبان سے وہ اسلام لانے کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی ایک جھوٹا بندہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس چلا گیا، اسلام قبول کیا، چلا گیا واپس، جب واپس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کے ساتھ ہی آیا تھا اور کفر کے ساتھ ہی واپس چلا گیا، دھوکے باز ہے، غدار ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا کہ یہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلا اور وہاں پر اونٹ چر رہے تھے صدقے کے، بیت المال کے اونٹ وہاں پر چر رہے تھے۔ اس نے اہل مدینہ کے اونٹ تھے، کوئی اور دوسرے تھے، وہاں سے ان اونٹوں کو لیا اور لے کر بھاگ گیا وہاں سے، گویا کہ ڈاکہ زنی کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلا تو بہت افسوس ہوا کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہاں آیا اسلام لانے کے لیے اور دھوکہ دہی سے یہاں سے نکلا اور ہمارے اونٹ چرا کے یہاں سے بھاگ گیا۔ پیچھا کیا لیکن وہ ہاتھ نہیں آ سکا، وہ جانور لے کر بھاگ چکا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ قافلہ 7 ہجری کو ذی القعدہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو یہ آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے جو کہ صدا ہوتی تھی کہ یہ حرم کی طرف جانے والے مسافر ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا بھئی پیچھے بھی کوئی حرم کی طرف جانے والے لوگ آ رہے ہیں، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہی حتیم بن ہند جس نے ان کے جانور چرائے تھے، اس نے احرام پہنا ہوا ہے اور وہ جناب جا رہا ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ اچھا، اس سے بڑی عجیب بات یہ کہ وہ جو جانور ان کے چرائے ہوئے تھے ان کو قربانی کا جانور بنا کے نشان لگا کے تو وہ لے کے جا رہا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ بہت غصہ آیا صحابہ اکرام کو، یہ کیسا بدمعاش بندہ ہے، ہمارے جانور چرا کے لے گیا اور اب احرام پہن کے اب یہ جا رہا ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے اور جانور بھی ہمارے لے کے جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کو بہت غصہ آیا اور چاہا کہ اس سے جانور چھین لینے چاہیے۔ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا۔ ایک تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ فتح مکہ ہوا ہے سن 8 ہجری میں، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس وقت پورے عرب پر اسلامی حکومت رائج ہو چکی تھی، لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین بن کر دکھایا کہ سب کو معاف کر دیا۔ اب اسلامی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے اور یہ لوگوں کو معافی تو مل چکی پچھلی ساری بات کی، اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں بیت اللہ، مسلمان بھی جا رہے ہیں بیت اللہ۔ اب مسلمان جا کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طواف بھی کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، اور یہ آ رہے ہیں تو وہی پرانی رسم و رواج کے مطابق جاہلانہ طریقے سے وہاں سارے کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت غصہ آیا کہ یہ بدمعاش پہلے تو اپنی من مرضی کر لیتے تھے، اب ان کی من مرضی کیسے چلے گی، اب تو حکومت ہماری ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے اندر اپنا ڈنکا بجا دیا، اب تو حکومت ہماری ہے، اب ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ 3 واقعات ہیں اس کے شان نزول میں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو۔ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نشانیاں، اس سے نماز، اذان، حج، ختنہ، سنت کے موافق داڑھی رکھنا، عورت کا
पर्दा करना, ये सारे के सारी शआइरुल्लाह हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं शआइरुल्लाह को हलाल ना समझो, यानी इनकी बेहुरमती ना करो। असल ये तर्जुमा, ना बेहुरमती करो शआइरुल्लाह की। अब शआइरुल्लाह की बेहुरमती में एक तो ये बात आती है कि सिरे से ही इन अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये भी बेहुरमती है। दूसरा ये कि इन पर अमल तो करें मगर अधूरा करें, पूरा अमल ही ना करें, ये भी बेहुरमती है शआइरुल्लाह की। और तीसरा ये है कि मुकर्रर करदा हुदूद से आगे बढ़ जाएं, जितनी अल्लाह ने एक हद रखी है उससे आगे निकल जाएं, हद से तजावज़ कर जाएं, तो ये भी शआइरुल्लाह की बेहुरमती है। शआइरुल्लाह में 4 चीज़ें अहम हैं। सबसे मेन सर फहरिस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, कुरान मजीद, बैतुल्ला और नमाज, ये 4 चीज़ें मेन हैं शआइरुल्लाह। और इसके अलावा मस्जिदें, ये भी शआइरुल्लाह में दाखिल हैं। दीनी जितने भी अहकामात हैं ये भी शआइरुल्लाह में दाखिल हैं। यहाँ तक कि कुरान पाक सूरतुल बकरा और पारा नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा ये भी अल्लाह की निशानियों में से हैं। शआइरुल्लाह अल्लाह की निशानियाँ। तो अल्लाह की जितनी भी निशानियां हैं शआइरुल्लाह हैं, इनका मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं, इनकी बेहुरमती करने की इजाज़त नहीं। बहुत से लोग दाढ़ी रखते हैं और दाढ़ी का बिगाड़ कर देते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये दाढ़ी का जब डिज़ाइन बनाएंगे तो वो इसकी बेहुरमती कर रहे हैं, इसके साथ मजाक उड़ा रहे हैं। तो दीन का कोई भी शोबा है वो शआइरुल्लाह में दाखिल है और उसकी बेहुरमती करने की इजाज़त नहीं। यहाँ पर अल्लाह पाक ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, शआइरुल्लाह की बेहुरमती मत करो। वलश्शहरल हराम, अब ये पहले अर्ज़ कर दिया गया कि ये आयात मुबारका किस मौके पर नाज़िल हुई। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन वहाँ पर जा रहे हैं सफ़र उम्रा पर, और रास्ते में देखा कि वो अपने ही बंदे हैं और उन्होंने वो सारे इनके जानवर ही चोरी करके तो वो कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे हैं। यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया कि सहाबा इकराम को और ईमान वालों को कि देखो शआइरुल्लाह की बेहुरमती नहीं होने देनी। नंबर 2 वलश्शहरल हराम, हुर्मत वाले महीना की बेहुरमती नहीं करनी। 4 महीने हुर्मत वाले समझे जाते थे। ये कौन से थे? ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने ज़माना जाहिलियत में हुर्मत वाले समझे जाते थे। उलमा इकराम फरमाते हैं अब ये हुक्म मनसूख हो चुका है। तो जब यह सहाबा इकराम का काफिला जा रहा था और गुस्सा आ रहा है कि हमारा लुटेरा और हमारा डाकू सारे हमारे जानवर चोरी करके डाका मार के अब ये उम्रे पे जा रहा है, तो अल्लाह ने क्या फरमा दिया, देखो हुर्मत वाला महीना है, ज़िकात का महीना है, हुर्मत वाले महीने की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तीसरा हुक्म वलल हदिया, हदी कहते हैं उस जानवर को जिसको कुर्बान करने के लिए हरम की तरफ सफ़र शुरू करवा दिया जाए, उसको मुंतखब कर दिया जाए कि इसको हरम में ले जाकर ज़िबा करना है, उसको हदी कहते हैं। तो फरमाया वलल हदिया कि किसी बंदे के लिए इजाज़त नहीं है कि अब वो हदी की भी बेहुरमती करे। सुबहान अल्लाह, क्या इस्लाम का तकाजा है। अपने जानवर छीन के लेके जा रहे हैं वो, लेकिन अल्लाह ने मना फरमा दिया कि देखो
नंबर 1, शाइरुल्लाह आ रहे हैं सामने सारे, तो शाइरुल्लाह का एहतराम ज़रूरी। नंबर 2, हुर्मत वाला महीना है, इसका एहतराम भी ज़रूरी। नंबर 3, ये हदी है, अब इसकी निस्बत बैतुल्लाह की तरफ और अल्लाह की ज़ात की तरफ, हरम की तरफ हो चुकी। अब तुम्हारे लिए इजाज़त नहीं है कि तुम इस जानवर को दोबारा छीनो। वलल कलाइद, कलाइद कहते हैं कि जानवर को हरम की तरफ ले जाने के लिए उसके गले के अंदर कलादा डाल दिया करते थे, निशानी डाल दिया करते थे, ताकि देख कर लोग पता कर लें कि ये हरम की तरफ जाने वाला जानवर है और फिर उससे बेहुरमती या उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो अब जब ये मामलात होंगे तो जो दरमियान के अंदर मुसाफिर होंगे, ये डाकू होंगे, कोई लुटेरे होंगे, वो भी जब देखेंगे कि ये जानवर के गले के अंदर कलादा डाला हुआ है तो हरम की तरफ जा रहा है, ये हरम का कुर्बान है, इसलिए इसके ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए, इसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, इसको जाने दें। वला आमीन अल बैत अल हरामा, सहाबा इकराम के दिलों में जब ये बात आई ना कि वो हतीम बिन हिंद, रोको इसको, ये सारे हमारे जानवर लुटा के अब ये हरम जा रहा है, रोको इस सारे काफिले को। फरमाया वला आमीन अल बैत अल हरामा, और ना ही हलाल है आमीना, जो आने वाला हो, बैत अल हरामा, हरम वाले घर की तरफ आने वाला है, उसकी भी बेहुरमती जायज़ नहीं है, उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा और मामला जायज़ नहीं। यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, वो क्यों? इस वजह से कि यब्तगून, वो तलाश करना चाहता है, फज़लन, फजल को, मिन रब्बिहिम, अपने रब का, व रिज़वाना, और उसकी रज़ा। अब उसकी नीयत बैतुल्लाह की तरफ है और देखने में यही लग रहा है कि ये अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए जा रहा है और अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए सफ़र कर रहा है, एहराम पहन चुका है, जानवर कुर्बानी के साथ लेकर जा रहा है, लिहाजा अब किसी के लिए हलाल नहीं है कि इसका रास्ता रोके। वइदा हललतुम, जब तुम हलाल हो जाओ, फस्तादू, अब शिकार करने की इजाज़त है। पीछे जो मना किया था कि हालत एहराम में शिकार की इजाज़त नहीं, अब उसकी हिल्लत बयान फरमाई जा रही है कि जब एहराम ख़त्म हो जाए अब शिकार की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि हरम के इलाके से शिकार नहीं करना, हरम के इलाके से शिकार नहीं करना, इसके अलावा बाहर है तो आप जब एहराम खोल चुके हैं तो अब आपके लिए इजाज़त है कि अब आप शिकार कर सकते हैं। वइज़ा हललतुम, जब तुम हलाल हो जाओ, यानी एहराम ख़त्म हो जाए तुम्हारा, फस्तादू, अब शिकार कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, अब ये वाला मामला आ गया कि जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई और लोग ज़माना जाहिलियत के तरीके के मुताबिक ही सारा वहाँ रस्म व रवाज, बैतुल्लाह की सारी बेहुरमती सब कुछ कर रहे हैं, और देखकर बड़े परेशान हुए कि ये क्या मामला है, कल तो हुकूमत इनकी थी, आज हमारी है, इसलिए ये काम नहीं सारे चलने देंगे। वला यजरिमन्नकुम, और दूसरा दिलों के अंदर ये ख्याल है ये वही लोग हैं जिन्होंने सन 6 हिजरी में हमें बैतुल्लाह हाजिर नहीं होने दिया, लिहाजा आज हम इनको नहीं होने देंगे, इनको बैतुल्लाह की हाजिरी से रोकेंगे, इनका तवाफ यहाँ बंद करेंगे। ये सारे मसाइल सुन के आज अपनी मुआशरती ज़िंदगी को भी सामने रखें कि हम कैसे 1 मिनट के अंदर तैश के अंदर आ जाते हैं, हमारे क्या हालात होते हैं। जब छोटी सी बात आती तो हम क्या कहते हैं, अच्छा इसने ऐसे किए, इसकी ऐसी की तैसी, हम भी ऐसे करके दिखाएंगे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की तरबियत करके अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए सारे वाक़यात बयान करके हमें सबक दे रहे हैं कि देखो, जब सामने दुश्मन है, जब सामने डाकू है और सामने कुफर है, जिसके कुफर के अंदर शक की कोई नहीं, मेरे नबी ने उसका कुफर बयान कर दिया, कुफर के साथ ही आया था, कुफर के साथ ही गया, उसके ऊपर भी हाथ तक उठाने की इजाज़त नहीं, उसका मुकाबला करने की इजाज़त नहीं, तो आज एक दूसरे का मुकाबला करने की कैसे इजाज़त है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आगे सबक चलेगा।
اللہ ताला हमें समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।